Hi, friends. Today, it is my pleasure and honor to welcome on the virtual platform a very strong, bold, courageous entrepreneur who is lovely and a gem by heart. इनका दिल इतना बड़ा है कि मैं बता नहीं सकती और आप जब बात करेंगे तो सबसे पहले तो इनकी स्वीट वॉइस सुन के इतनी सॉफ्ट टोन सुन के ही आपको मजा आ जाएगा। अगर आप गुस्से में हैं तो आप गुस्सा भूल जाएंगे। अगर आप परेशान हैं तो आपको इतना अच्छा लगेगा इनसे मुलाकात करके, बिकॉज शी has a solution for the problem that you have. So, my dear friends, please welcome on the virtual platform Sonal. She has got so many things on her profile कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से start करें. But to brief her profile, I would say that she is an entrepreneur and उनका business venture का नाम है Stay and Move Travels. So please put your hands together and welcome Sonal on the platform of Special Wow series जिसका episode है Inspirations in Life. Most welcome. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. So to start with the conversation, the very first question that I have is what made you think about this kind of thing, stay and move? Why not something else? ये आपके mind में आया कैसे? Well, this is a story that is 12 years back when we were planning to start this company, Stay and Move Holidays. So we were working on the name. What should we do? What name should be given to this company? And we thought that wherever we go, wherever we visit, we stay there. And then we move on to our next journey. So these two words, stay and move, they fascinated me a lot. And then there was a thing that should we write down stay and move, A and D and? Then this letter N as a slang, it struck me and it gave me a new thing to think upon. So that is why I came up with this stay and move I really holidays. like the name and especially about the N letter that you have defined, and it's looking great, wonderful. I just came to know that you love to write. Poetry लिखना पसंद है आपको, stories लिखना पसंद है. So please let us know कि जो आप लिखते हैं उसका main theme क्या रहता है? What is the main objective? Well, Rishabhan, to be very precise, there is no particular objective of anything we write. A writer who comes up with ideas, uh, anything that strikes to his mind, he can write upon that. Either their emotions, their festivities, it can be anything. So many a times when I'm sitting alone, if I have a newspaper in front of me and a pen or a pencil, I start writing anything that strikes me to. Okay, so you are fond of writing and as an entrepreneur, I'm sure आपका बहुत सारा काम रहता है. Besides that, you are volunteering with so many organizations and you love to hear music, you love to read. So many things you do. Like, how do you manage your time? Well, when I was small, my father told me one thing that Beta, there are 24 hours in a day. And how many hours do you require to sleep? I said basically 8 hours as is suggested by the doctor. So if you leave those 8 hours, we get 16 hours. And if you include all the morning things, your dinner, your lunch, and everything, you can exclude 2 more hours. Still, you have 14. So, what are you going to achieve in those 14 hours? That is why, and also I do not like to sit idle. I love to do something or something or something. Uh, to be precise, I would say I have recently applied for NET examination in my industry, tourism industry, which I'm supposed to take on in this December. Okay, wonderful. So all our best wishes are with you. I would like my viewers And to please pause the video और आप comment box में लिखिए.
कि 16 आवर्स आपके पास जो होते हैं, आप कैसे स्पेंड कर रहे हैं? Isn't this tip valuable? So many things we have learned from this just one answer. सबसे पहली चीज, अपने फादर से ही इन्होंने कितना कुछ सीखा है। Everybody keeps looking for somebody to help them. आप अपने घर में ही देखेंगे, आपके closed ones, स्पेशली मदर और फादर से ही हम कितना कुछ सीखते हैं, तो उसी को ही इम्प्लीमेंट करिए, बहुत अच्छा लगेगा। Well, my next question is, you have written that you love to take up challenges, but I have been hearing about so many youth, especially, who give up whenever there is a challenge. So, what is it that you would like to tell them? Well, if there are no challenges, there is no life. When you come across challenges, you get to know that yes, you are still alive. This is life. You have to face everything. And in that journey of facing, you will get across many people who can be your friends for life, who can be your mentors, who can be your guides. And your experience will one day become a great thing to look upon by others. Wow, wow. I like the way you said that, yes, life is full of challenges. The way you cope up with every situation and every challenge depends on you. So, my dear friends, please remember, take every challenge as a great opportunity. And I'm sure each one of us has got hidden potential. तो आपका वो हिडन पोटेंशियल भी तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे जब आप चैलेंज को पॉजिटिवली लेंगे, ठीक है? And I also read that Sonal is an optimistic person, a solution oriented, and as I mentioned initially, that she loves to take up challenges and she has a solution for every problem. आप हमें 3 टिप्स बताइए कि अगर कोई इंसान बहुत परेशान है, okay, that person thinks that this is the last moment of his life, अब इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता, तो आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगी? कोई 3 टिप्स बताइए। फिर सबसे पहली बात, जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी चल रही। तो अगर लास्ट मोमेंट भी है, यू कैन नॉट से दिस इज द लास्ट मोमेंट until you breathe your last. Okay. तो आप जिंदा हैं, ये सबसे बड़ी बात। दूसरा, चैलेंजेस चाहे जैसे भी आए, दे कैन बी द एडवर्स वंस, बुरे से बुरे चैलेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन एक रोशनी हमेशा रहती है। याद रखिए, हमेशा रात के बाद सुबह आती है। सुबह का जो उजाला होता है वो याद दिलाता है कि हाँ, हम अभी जिंदा है, जिंदगी अभी भी चल रही है। दूसरी बात, जब कोई पेड़ मुरझाने लगता है तो हम क्या करते हैं? हम उसकी गुड़ाई करते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको थोड़ी सी खाद देते हैं और वो पेड़ फिर से ब्लूम हो जाता है। सेम वे इज आवर लाइफ। You just need to look upon the solutions, not the problems. Problems will come every now and then, but you have to see the best aspect of that problem that is teaching you. आप उसमें से सॉल्यूशन खुद निकाल सकते You हैं, are आपको किसी की जरूरत sounding, नहीं you है। are sounding like a soft skills trainer. So many value additions. You are giving us so many golden nuggets. This reminds me that जब भी अंधेरा होता है, तो हम ऊपर स्काई में देखेंगे तो हमें क्या दिखता है? स्टार्स, isn't it? तो जब भी डार्कनेस होती है, आप कोशिश करिए कि लाइट पे फोकस करिए, जैसा कि हमें सोनल जी ने बताया, and always remember that there is a ray of life. Howsoever worse the situation is, there is no end to it. Life has to go on and life will keep on moving ahead. Okay, तो आप घबराइए मत, कोशिश करते रहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. And one more value addition here I would like to give is, our mind is like a magnet. तो जिस पे आप फोकस करेंगे वही एनर्जी और वही सब चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी। तो बजाय कि नेगेटिविटी पे फोकस करने के, पॉजिटिविटी पे फोकस करिए। वेरी गुड, वंडरफुल। तो आप स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा किस में टाइम स्पेंड करती हैं? विच इज योर फेवरेट स्पोर्ट एंड हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड? Well, badminton has been my favorite sport since childhood, and by God's grace, I have earned some
medals as well into it. I have placed on single badminton championship and also the doubles. In the doubles, I scored the gold medal with my partner, and it was on the inter-college level. Also, for the single ones, I have earned the silver medal. Wonderful. Or sports में, I play chess with my son. Mhm. Wonderful. Yeah, and I just prefer that keep on doing something. स्पोर्ट्स जो है वो जरूरी नहीं कि कोई गेम्स ही हो. यदि आपके दिमाग को थोड़ा सा भी काम करना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है, कंसंट्रेट करना पड़ रहा है, और साथ में आपकी बॉडी भी सपोर्ट कर रही है, इट्स काइंड ऑफ अ स्पोर्ट फॉर यू. स्पोर्ट्स क्या Absolutely. है? Exercise, स्पोर्ट्स brain मतलब सिर्फ आपके exercise. कंसंट्रेट. Yes. यस, ब्रेन एक्सरसाइज, Mm. आईज हैंड्स कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन, यही तो है. तो चाहे वो किसी भी वे में हो रहा हो, दैट इज स्पोर्ट्स. वंडरफुल. इवन लाइक जो हमारे ब्रेन टीजर्स होते हैं वो भी करिए आप. स्पेशली स्टूडेंट्स जितने भी स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको ब्रेन टीजर्स जरूर दीजिए. वो एंजॉय भी करेंगे और उनकी एक्सरसाइज भी होगी और थोड़ा सा उनको एनर्जेटिक भी फील होगा. वंडरफुल. So I see here that besides achieving so many medals in the sports, you have also achieved many things as far as debate competition is concerned. वहां पे भी आपने काफी समय विन करा है. So do you remember the topic of any debate जिसमें आपने जिसमें आपने जीता? I was in I think class 8th or 9th that time, and inter school competition था. मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है, बट उस समय कारगिल युद्ध को लेकर के काफी बातचीत चल रही थी. तो उसके Okay. ऊपर हमें डिबेट करना था इंग्लिश में, और आई स्कोर्ड गुड पोजीशन इन दैट. फिर मैं ब्रिटिश स्कूल फॉर लैंग्वेजेस में आई वाज देयर फॉर सम टाइम टू हेल्प देम. And there was a competition to write the advertisement within 15 minutes then and there. Okay. And you have to speak it. You cannot see what you have written. You have to speak it. And it had to be for and against of making an advertisement, and why should they not be made. So that was again a debate competition among my peers, and I stood first by Oh. God's grace again. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बताया आपने. और ये जो आपने बिज क्विजिंग का बताया, इसमें क्या था इवेंट में? This was a BIS quizzitive. BIS मतलब business से related quiz था, जो कि कानपुर में हुआ था, by one of the renowned management colleges. Since I was studying for management of business administration, मैं MBA कर रही थी उस समय, marketing और retail की field थी. तो challenges लेना हमेशा से बहुत पसंद था. तो हमारे यहाँ अक्सर करके कॉलेज में, एमिटी यूनिवर्सिटी में अक्सर करके कॉम्पिटिशन्स होते थे. So this was the competition which was not done by our university. We had to participate ourselves. So I thought that why not, कुछ नया ट्राई करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं जो मेरा कंफर्ट जोन नहीं है. Let's go and see. And we had a great experience there. तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन टू बी नोटेड माय डियर फ्रेंड्स, यू नीड टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्टेबल जोन. तभी आपको सक्सेस अचीव होगा. इजंट इट वंडरफुल टू हियर दैट? बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट था ये, और आपने भी बहुत इंजॉय करा होगा कि आपको ऑन द स्पॉट डिजाइन भी करना है, प्रेजेंट भी करना है. यू आर नॉट अलाउड टू लुक एट इट, एंड many more things to learn besides that. आपका confidence level enhance होगा, और आपका stage fear जो रहता है वो भी आप overcome कर पाएंगे. So many value additions. Well, as you said that you have done your MBA in marketing and retail. So what was your experience like? What was the key learning? Well, retail means retail was a thing wherein we were taught the complete chain. जहाँ से प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुए, उसके बाद जब वो मार्केट में निकलते हैं और एंड कंज्यूमर तक आते हैं, वो पूरी चेन हमने सीखी. और वी गो टू लाइक लेट्स से बिग बाजार, or we go to Shoppers Stop, different kind of places, which were then very new. जिस समय हमने क्वालिफाई किया उस समय में ये नए थे इंडिया में. और bringing all the shops under one roof,
which was a very tedious task to do. छोटे छोटे जो दुकानें थी जहाँ से जाते थे हम लोग हमेशा अपने पड़ोस में शॉपिंग करते थे, उसको छोड़ के किसी एक छत के नीचे जाना, वहां पे गलियां लेके घूम रहे हो या टेकिंग द ट्रॉली एंड शॉपिंग, वहां पे सब चीज ट्राई करने एंड ऑल दोस थिंग्स. So this was a very challenging task once again. And I have worked with Big Bazaar. मैंने वहां देखा है कि कैसे वो काम करते हैं. इट्स अ वेरी टीडियस थिंग टू डू. बहुत ही ज्यादा एफर्ट्स लगता है. Not very long for, I worked for a few days only and I left it because that was not my line further. I love to be into the market. मुझे मार्केटिंग और सेल्स ज्यादा पसंद था, इसलिए मैं उधर चली गई. तो रिटेल ने हमें सिखाया कि होलसेलर्स कैसे वर्क करते हैं, रिटेलर्स कैसे वर्क करते हैं, कितना बीच में मार्जिन है. और इसी को ध्यान में रखते हुए जब कोविड का समय आया और ट्रैवल इंडस्ट्री काफी ज्यादा नीचे चली गई थी, तो आई स्टार्टेड अ न्यू वेंचर विच वाज नेम्ड एज सुनीता's कलेक्शन. एंड इसमें हमने कोशिश ये किया था कि जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं who were not able to reach direct customer, Yes. उनके बीच का जितने चैनल्स हैं, होलसेलर्स, रिटेलर्स, पैकर्स एंड मूवर्स, जितने भी, उन सबको खत्म करके आई ट्राई टू मैच अप विद मैन्युफैक्चरर्स एंड द एंड कंज्यूमर डायरेक्टली. Okay. And how was it? Were you able to achieve like the break-even point? Yeah, profits अच्छे रहे. Yes, yes, we achieved the break-even point. Like let's say if I talk about Gujarat, तो जो गुजराती लहंगे होते हैं या जो राजस्थानी लहंगे होते हैं वो हमें कितना ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं. जब भी नवरात्र आते हैं everybody is looking for them, the dandiyas and lehengas and everything. But are you able to get it into a good price? No, it becomes very expensive when it is bought from either let's say from malls या बड़ी शॉप से आप लोगे तो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है. एंड कंपेरेटिवली जो कारीगर है जिसने उसको बनाया उस तक उसके प्रॉपर अमाउंट नहीं पहुंचता. नहीं So पहुंचते. we tried कि वो कारीगर से हम डायरेक्टली उठाए, कस्टमर को दे और कारीगर कैन गेट द कंप्लीट प्राइस ऑफ हिज थिंग्स. यस, एब्सोल्युटली. ये तो बहुत ही बढ़िया बताया आपने. तो मैं चाहूंगी कि जितने हमारे एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो स्टार्टअप्स का सोच रहे हैं, कुछ इंटर्नशिप्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, मेंटोरशिप चाह रहे हैं, यू शुड कनेक्ट विद सोनल. शी विल हेल्प यू एंड शी विल आल्सो गाइड यू विद हर एक्सपीरियंस. Well, I also see that you are volunteering with an organization. तो वो organization क्या कर रही है? तो आपका उसमें क्या रोल है एज अ वॉलंटियर? Right. I am volunteering with Jyoti's Fund and Welfare Society. It's a non-profit organization. It's an NGO which is working for the welfare of women and children. Apart from that, it is any kind of problem that comes to us, we try to see to it. हम उसको solve करने की पूरी कोशिश करते हैं. Since I'm based in Dehradun right now, तो यहाँ के जितने भी slum areas हैं, जहाँ आंगनबाड़ियाँ चलती हैं, तो हम आंगनबाड़ी जाके visit करते हैं. और वहाँ के बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा पोषण नहीं मिल रहा है या प्रॉपर उनको चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उनको वो चीजें प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट की जो भी नॉर्म्स आ रहे हैं उससे उनको अवेयर करना. लेडीज, ऐसी बहुत सी लेडीज है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रही हैं या सिंगल मदर्स हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है सर्वाइवल की, वो नहीं कर पा रही हैं, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब दिलवाना या उनको भी एक एंटरप्रेन्योरशिप की चीजें समझाना. जैसे कि एक लेडी हमें मिली थी, शी वॉज अ वेरी गुड टेलर, उनको टेलरिंग का बहुत शौक था, उनके पास एक सिंगल मशीन थी, बट उनके पास क्लाइंटेल नहीं था, जगह नहीं थी, दो बच्चे थे, हस्बैंड की अचानक डेथ हो गई. तो शी वॉज कम्प्लीटली हैंड टू माउथ. शी हैड नथिंग. शी केम टू अस. उन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए हमसे बात किया कि फीस नहीं भरा है तो हमारे बच्चे को 10th में बैठने नहीं दे रहे हैं, उसका Yes. साल खराब हो जाए. So we tried and talked to the school. वहाँ हमने उनको रिजॉल्व करवाई सिचुएशन एंड साथ में उनको वर्क करने के लिए भी हमने हेल्प किया. As far as my thing in the organization, I'm working as a public relations officer. I'm volunteering with them. So any kind of media news that they are supposed to create or any kind of meetings that are supposed to be done with the high authorities, I go with them and I try my best
to bring in the वंडरफुल, best for them. वंडरफुल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बेस्ट विशेस फॉर दैट। वेल, आई सी दैट एज यू सेड दैट आपका जो मेन वेंचर है वो है स्टे एंड मूव, तो मुझे लगता है आपको खुद भी ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। Yes, very much. ओके, तो अगर आपको कभी चांस मिले तो कौन सी ऐसी 3 जगह है जो आप विजिट करना चाहेंगे और जो अभी तक नहीं विजिट कर पाए हैं आप? Which 3 places Well, would you like to visit? I want to go to Europe first of all because Scotland, especially, I can say, जो मतलब कि areas हैं, they are to some extent unexplored और बहुत सुंदर places हैं which I want to visit. In India, I have not been to Kashmir yet. You won't believe, but I have not been to Kashmir. So I want to go to Kashmir, and because नहीं पता कि आगे situations क्या होंगी, so I want to visit the paradise on earth, which is in India. We have it, and I have not visited. Hmm. Secondly, I want to go to the Seven Sister States. ओके, वंडरफुल। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप चाह रहे हैं कि सोनल आपके पास आए तो उनकी मनपसंद 3 जगह है। अगर आप भी वहां पे हैं, प्लीज डू राइट इन द कमेंट एंड वी विल बी देयर विद सोनल एज योर गेस्ट, और आपको मिलेगा मौका उनको होस्ट करने का। इजंट इट ग्रेट? वेल, फॉर द गर्ल्स, what is the message that you would like to give? Well, for the girls, my dear girls, remember one thing. बचपन से सिखाया जाता है कि बेटा खाना बनाना सीख लो, अपने बटन काटना सीख लो, बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, बेटा वॉशिंग मशीन चलानी आती है, कपड़े धो सकती हो, सुखाना आता है, प्रेस करना आता है। These are the very basic questions which either your parents or other family members they ask. So my dear girls, please, please and please do not restrict yourself into these things because life यहाँ पे end नहीं होती है। Life बहुत लंबी है. You can live for 90 years, 60 years, whatever the age God has given you. Do not think अरे मेरी तो बस इतनी उम्र है, इतना ही तो जीना है, ठीक है सबके लिए करके जी लेंगे। नहीं, जिंदगी को काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है और खुल के खुश रह के जीना है, पहली बात। दूसरा, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जिंदगी को सिर्फ काटना नहीं है, जिंदगी को जीना है, भरपूर जीना है। और जैसे कि हमें सोनल जी ने बताया दैट डू नॉट हेजिटेट एंड डू नॉट थिंक दैट ये छोटी छोटी बातें, ये छोटी छोटी चीजें हमें क्यों सीखनी है, ये जितना हो आपकी सके लाइफ जर्नी में आज, हेल्प करेगा। यस, आई थिंक कुछ यस, टेक्निकल इश्यूज हैं। यस, अब बताइए। यस। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं आज भी लर्न कर रही हूँ। आई लव टू रीड बुक्स, आई लव टू रीड समथिंग और द अदर एवरी नाउ एंड देन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सी सिर्फ लड़कों का काम नहीं है बाहर जाके पैसे कमाना, लड़कियां भी कर सकती हैं। सिर्फ लड़कियों का काम नहीं है घर में रोटी सब्जी बनाना, घर की साफ सफाई करना, लड़के भी कर सकते हैं। The biggest example is the Sanjeev Kapoor, the great chef. कितना अच्छा वो खाना बनाते हैं। आप किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप कहते हैं वाओ व्हाट अ टेस्टी फूड, बट who is cooking it? Males are cooking it. It's not just for the females, for the girls. So girls, focus upon yourself. अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ पर फोकस करो एंड माता पिता से ये कहो मेरा कन्यादान नहीं करना है आपको, मेरा कन्यादान नहीं करना है। मैं अ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, इस लायक बनना चाहती हूँ कि मैं खुद के फैसले खुद कर सकूं, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत ना पड़े। एंड बिलीव मी, जितने डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं, जितने भी और प्रताड़ना के केसेस आते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ और सिर्फ लेडीज को, लड़कियों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तीनों ही पॉइंटर्स बहुत अच्छे, बहुत रेलेवेंट बताए आपने। तो कभी ये मत सोचिए कि ये काम सिर्फ गर्ल्स के लिए है या ये काम सिर्फ बॉयज के लिए है। अगर आप चाहते हैं लाइफ को एंजॉय करना और थोड़ी सी अपनी जर्नी को स्मूथ बनाना, तो हर काम सीखिए, आगे बढ़िए, और स्पेशली स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। जैसे कि सोनल जी ने बताया, वेदर इट इज जस्ट बटनिंग अप और स्यूइंग, या फिर आपको घर पे रोटी बनानी है, सैलेड ड्रेसिंग करना है, वॉशिंग मशीन करना है। एंड आई नो दैट स्टिल वी कीप लुकिंग फॉर मेड्स टू हेल्प अस इन जस्ट वॉशिंग द क्लोथ्स, और जो कि उनको मैनुअली हाथ से नहीं धोने हैं, वॉशिंग मशीन से धोने के लिए भी आपको मेड चाहिए। Come on, don't be so lazy, isn't it? We have got so many things at our house, so why don't you just help your mother in some way or the other? आपको अच्छा भी लगेगा और आप ये छोटी छोटी बातें सीख भी जाएंगी। मैं ये क्वेश्चन हर अपने गेस्ट से पूछती हूँ, और ये सवाल आपके लिए भी है। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल लेडी कौन है? हाउ डू यू डिफाइन अ लेडी हु इज सक्सेसफुल? Well, I need to answer this. यस। Okay. Well, let's see Miss Richa, who's sitting in front of me. She's such a beautiful, energetic lady, and she's so successful in her stream. तो हमें कुछ नहीं सीखना है, हमें कुछ करना नहीं है, बस अपने अंदर देखना कि हमारे अंदर क्या है, अपने आप को पहचानना है बस। दूसरों की नजर से नहीं, खुद की नजर से। बेहतर होइए तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, बिकॉज यू आर द फर्स्ट वन हु इज गोइंग टू लुक इनटू द मिरर एंड सी हाउ एम आई लुकिंग। कोई दूसरा नहीं बताने आना है, पहले खुद को देखो, मेरे को ये कोट अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, लेट्स सी, ओके ठीक है, इसको हटा दिया। लिपस्टिक लगाओ, आज लिपस्टिक लगाने का मन नहीं है, इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स योर बॉडी, यू आर द वन हु इज गोइंग टू लुक इनटू योरसेल्फ, बहुत ही मजेदार राइट? आंसर दिया आपने, बहुत मजेदार। मतलब प्लीज रिमेम्बर माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हमारे भी मूड स्विंग्स हैं। तो जैसा आपका मन करा है वैसे करिए। कभी कभी आपका अच्छे से तैयार होने का मूड होता है तो तैयार हो जाइए। सो Sonal believes that, see, you are successful in your own way, in your own style. आप जहां पे भी हैं, जैसे भी हैं, एंजॉय करिए, लाइफ को पूरी तरह से जीने की कोशिश करिए। और इस प्रयास में, इस कोशिश में आपके साथ हम सब के सब हैं। हमारी ब्लेसिंग्स हैं, हमारी मेंटोरशिप है, हमारी गाइडेंस है। तो अगर आपको कुछ भी चीज बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, please do not hesitate in reaching out. You can write us, you can mail us, you can message us, और हम आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचने का पूरा प्रयास करेंगे। Thanks a lot for sparing your valuable time. It was a pleasure knowing you and learning so many valuable things. So please, my dear friends, try to implement the learnings. Thank you, Sonal. थैंक यू सो मच, थैंक यू।